नम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, one more death in Beed, but this time it's supposed to be on some extramarital affair or something like that. But the point is, if there's a problem, you go to approach the police. I mean, people are taking law into their hands and killing, and Beed is becoming एक example हो के आया है कि murder हो रहा है, random killings, continuous killings. Now Sanjay Raut ने has pulled up some killings in Konkan region also. यानी the fear of law is not there. Now, as a Home Minister, Fadnavis will have to do something to instill fear of law in the minds of the people. Or it's going to be the same thing again and again. You'll have more and more murder cases, people taking law into their hands. If there is some act which is any kind of trespass or whatever, you go to the police. That's the best way to do it. You don't take law into your hands and kill the other person. Now, this is randomly happening across Maharashtra. And this is the cause of worry. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भीड़ का ये मसला सामने आया, धनंजय मुंडे साहब जो मंत्री थे अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो इतनी देर लग गई उनका इस्तीफा लेते लेते, तो मतलब बड़ा अजीबोगरीब मसला हो गया। और तो और छोड़िए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी, कि धनंजय मुंडे साहब छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। He is not leaving because of his involvement in the killing of that gentleman. What is his name? Mr. Deshmukh, right? Yes, Santosh Deshmukh. वो संतोष देशमुख जी की निर्मम हत्या जो हुई, क्योंकि उनका नाम जोड़ा जा रहा था वाल्मीकि कराड़ साहब से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा उन्होंने दिया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। I don't think that's fair. That's very, very unfair as far as the पीपल ऑफ महाराष्ट्र कंसर्न। सब लोगों को सामने रखना चाहिए था, भाई देखिए इनका नाम इसमें आ रहा है, तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद वील ब्रिंग हिम बैक। ना, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैव टू गिव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट टू मिस्टर धनंजय मुंडे। आफ्टर ऑल ही इज फ्रॉम द एनसीपी, अजीत दादा पवार, सो व्हाट? As far as the BJP is concerned, they can easily take whatever decision that they have to. That's it. End of story. Sir, Beed mein things are not yet over. Today, some suspended police officer from Beed says that I was given supari to knock out Valmik Karad. Now, ऐसे loose talking हिम्मत कैसे होते कोई police officer का? Because they believe that there's nothing, there's no law and order in that particular place. Everybody does what they want, everybody talks what they want, and that is exactly what is happening. Now, when all these things happen, where law and order is concerned, where situation has to be created where people fear law, it all reflects on the Home Minister. And the Home Minister is the Chief Minister. Now, he has to show some kind of real, जो बोलते हैं कि होम मिनिस्ट्री का कुछ दिखाना पड़ेगा जिससे लोग ये fear of law, उस चीज को जरा हमारी किताबों में एक fear of law has to be established. जी. If you don't establish it, it's going to be again this kind of and the killings, Pradeep ji, and the honor killings. And the other thing which has happened is the level of public discourse has become so low it's not funny. Rekha Gupta ji, Chief Minister of Delhi, the newly installed Chief Minister of Delhi, had no business talking like that about Akhilesh Yadav. You could have criticized Akhilesh Yadav, said the same thing more effectively if you had been more polite. अगर आप ज्यादा तहजीब और तमीज से बात करती हैं तो शायद आप ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, ये ज्यादा प्रभाव होता आपके शब्दों का। इसके बजाय आपने जो शब्दावली का प्रयोग किया, उससे समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी टुडे has now escalated the protest against the Delhi Chief Minister. कि क्या हो रहा है यार? I still remember दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब किसी को क्रिटिसाइज करते थे, तो मतलब क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और दूसरे आदमी को बुरा भी नहीं लग रहा है। मैसेज भी चला गया। अगर मैसेज भी जाता है, ही फील प्राउड ऑफ इट। यस, कि देखो किस प्रकार से हमारे आलोचना किया जा रहा है। उसका भी एक स्टाइल था, एक अंदाज था। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख लीजिए, उनको देख लीजिए, और तो और छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, प्रदीप जी, जॉर्ज फर्नांडिस को देख लीजिए और प्रमोद महाजन जी को देख लीजिए, किस प्रकार वो हंसते हंसते चुटकुले में अपनी बात भी कह देते थे, लोगों को हंसा भी देते थे, और दूसरे वाले और सामने वाले को ये मालूम भी पड़ जाता था कि भैया तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, सीधे हो जाओ। सीधी बात है। Where has all that gone? I mean, this is terrible what is happening.
आई रिमेम्बर अटल जी पार्लियामेंट में शरद पवार जी का आलोचना कर रहा और बात कहते कहते मैं शरद किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं शरद पवार जी का भी नाम नहीं लूंगा। मुझे अभी तक याद है, और शरद पवार जी ने जब वो 13 दिन की सरकार थी ना, यस यस यस, शरद पवार जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या कहा था, अगर आपको याद हो प्रदीप जी, उनका कि बिन दुल्हन का दूल्हा ये हमारे बिन दुल्हन का दूल्हा जो है 13 दिन का दूल्हा जिसकी दुल्हन नहीं है, मतलब so that is the kind of level of discourse that there was at that time. Look at it today, it's like terrible. I mean, I'm not, I feel terrible. You know, I've been a journalist now for a long time, so have you, Pradeep ji. Yeah, We've watched these guys. Yes, yes, yes. We watched the level of public discourse deteriorate to such an extent that it is now embarrassing. Whether it's on this side or that side, and the BJP, let's be very clear, it is my belief that BJP should set an example. They are the ruling party in most states. They are the ruling party, and this is the third time that Prime Minister Narendra Modi ji has become Prime Minister. They should learn something from Modi ji. जैसा मोदी जी क्रिटिसाइज करते हैं, आप वैसा ही कुछ करें। मेरा ये कहना है, वो उनसे तो सीख लो। एक जमाना था, अगर आपको याद हो प्रदीप जी, एवरीबडी यूज्ड टू इमिटेट अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे वो अटल जी जो लंबे पॉज लेकर के जो बात करते थे वैसे करते थे, और वही हिंदी की शब्दावली इस्तेमाल किया करते थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं की तरह बात करने की कोशिश किया करते थे। आज ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। Then that Atal ji used to get lost in his pauses only. Yes. And then people started believing now ये pauses नहीं चलेगा because pauses बहुत लंबा होते चला गया। जी, तो मतलब मेरा ये कहना है कि यार ये जरा गड़बड़ है कुछ। मैं ये समझता हूँ कि I think we need to wake up to what we are doing. I think we've got a lovely panel of guests at the moment. Let's go across to them and let's talk about what's been happening right here in Mumbai and elsewhere. Thank you very much. अरे शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम। जय सिया राम सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और व्यास जी नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? नमस्कार। Always a pleasure having you on the show sir. And of course प्रजापति साहब नमस्कार सर। प्रजापति जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रजापति जी सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, आप बधाइयों में इस वक्त। प्रजापति जी, ये मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी, इन्होंने क्या ऐसा कह दिया कि समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लग गया, मतलब अब आप बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अखिलेश यादव जी के खिलाफ उन्होंने कुछ व्यक्तिगत तौर पे कुछ टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से आज की तारीख में समाजवादी पार्टी बहुत प्रोटेस्ट कर रही है। वही प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, जब वो किसी को क्रिटिसाइज भी किया करते थे तो सामने वाला भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता था कि यार देखो देखो मुझको अटल जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो सब कहां गए वो लोग? सारी सभ्यता वो खत्म हो गई। प्रजापति जी बताएं सर। राजीव जी जी, बड़े दुख की बात यह है कि एक संवैधानिक पद पर दिल्ली की सीएम बैठी हुई है जी, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा शैली कम से कम इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। आखिर उस विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो आज पूरे भारत की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, इस देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का राजनीतिक धरोहर संभालने वाला व्यक्ति हो, इस देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों 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 पीढ़िए परिवार का जननायक हो, शोषितों वंचितों आदि महिलाओं बेरोजगारी युवाओं किसानों का मसीहा हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में एक मुख्यमंत्री के शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए। और जबकि कई बार उस बात को कहा जा चुका है और मीडिया द्वारा भी बताया जा चुका है कि ऐसा नहीं हुआ था, कि किसी ने उस मुख्यमंत्री के आवास में जरूर छेड़खानी की, क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की घटना करेगा? लेकिन आज भारतीय बड़े शर्म की बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मच गई है इस बात की विशेष रूप से कि कितने नफरती बयान मैं दे सकता हूँ, कितना नफरती मैं बोल सकता हूँ, कितने
कितना लोगों को गालियां दे सकता हूँ। लोग संसद में खड़े होकर के 20 करोड़ आबादी को क्या क्या शब्द बोलते हैं रमेश मुदगल जैसे लोग, और ना जाने ये लोग किस तरीके की विचारधारा से तरफ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जी विधानसभा में किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आप उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखते, आप उनके चेहरे पर हमेशा एग्रेशन देखते हैं, बट प्रजापति जी, आक्रामकता देखते हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री हैं, हमेशा एग्रेशन अच्छा नहीं होता है, कभी कभार जो है प्यार मोहब्बत से भी काम निकाले जाते हैं, प्रजापति क्योंकि जी, हमेशा जो है एग्रेशन काम नहीं प्रजापति आता। जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि 3 साल में मैं पॉवर्टी को उत्तर प्रदेश से निकाल दूंगा, इरेडिकेट कर दूंगा, तो हर समाज उसमें आ गया। वो कोई वर्ग को अलग नहीं कर रहा कि मैं इनको करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश से पॉवर्टी मैं भगाऊंगा, दूर करूंगा, इरेडिकेट करूंगा। तो वहां पर भी अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी आलोचना करना, टिप्पणी करना, क्या ये विशफुल थिंकिंग अच्छा नहीं है? एक गोल ओरिएंटेड प्लान है उनका 3 साल में पॉवर्टी को हटाने के लिए और 2029 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एस्टैब्लिश करने का। प्रजापति जी, वहां पर क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम है? प्रदीप जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछा जाए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितने रुपए होते हैं, कितने जीरो होते हैं, तो शायद नहीं पता होगा। हाँ, अंडे का जरूर पता होगा, जीरो का नहीं पता होगा, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा का ना पता हो उस देश का क्या हाल होगा यही समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले एमए किया था, बाद में बीए किया था। पहले उनकी एमए की डिग्री आई, और उस जमाने में जब प्रिंटर नहीं हुआ करता था उस समय की प्रिंटेड डिग्री आ गई उनकी निकल करके। कंप्यूटर आया कभी जा करके, और उनके 1980 के बाद कंप्यूटर आया देश में, और उनकी डिग्री पुरानी आ गई, पता नहीं कहाँ से छप करके आ गई। तो ये लोग वो लोग हैं जो केवल और केवल इस देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहीं से किसी भी तरीके का कोई भी व्यवस्था प्रदेश के लोगों की नहीं हो रही है। प्रजापति शिक्षा जी, के क्षेत्र में रोजाना आग लग जा रही है। अभी लखनऊ के अंदर एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है। जी प्रजापति जी, इसके पहले कि मैं शैलेश पांडे जी के पास जाऊं, लेट मी वेलकम आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लवली टू सी यू सर, लवली टू सी यू। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आसिफ फारूकी साहब ऑफ द कांग्रेस, वंडरफुल। प्रजापति साहब, एक चीज आप बताएं ये कि अभी अभी जो खबर आई है, 1 हफ्ता पहले खबर आई है कि जहां तक के ओबीसीज के अंडर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो सुपर बैकवर्ड हैं, जैसे आपका समाज हो गया, प्रजापति समाज हो गया, आज की तारीख में क्या यह सत्य है कि उनके खिलाफ वास्तविकता में उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, उनको इग्नोर किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा? इज दैट ट्रू बाय द वे कि ये एक मनगढ़ंत खबर है? प्रजापति जी। राजीव जी, इन्होंने राजीव जी जब राजनाथ सिंह थे तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्लासिफाई किया था का खा गा में जी, ठीक है ना, वो उसको भूल चुके हैं। इन्होंने अभी एक रोहिणी कमीशन भी बनाया था। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है जमा की जा चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी कोई काम नहीं कर रहे। ये मैंने बताया ना कि ये केवल और केवल सबका साथ और सबके विकास की तो बात करते हैं, लेकिन जितनी भी, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास जिसे कहते हैं, जिस तरीके से बिहार के अंदर मोस्ट बैकवर्ड क्लास होता है, उस तरीके का कोई भी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती थी, 14 अप्रैल था। 14 अप्रैल को बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश में समानता नहीं आएगी तब तक इस देश के अंदर आरक्षण का बंटवारा इस प्रकार से हो कि सभी लोगों को समानता का अवसर मिल सके। आज भी इस देश की सैकड़ों जातियां ऐसी हैं जिनका एक भी सांसद नहीं बना। मैं अपने ही बात कर रहा हूँ। प्रजापति समाज का एकमात्र सांसद
कांग्रेस पार्टी द्वारा रत्नप्पा कुमार बने थे, उस रत्नप्पा कुमार के बाद पूरे भारतवर्ष में आज तक एक भी प्रजापति कुमार समाज का व्यक्ति सांसद नहीं बना। आखिर आखिर इस देश की ये राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से क्यों गुमराह करने का काम करती हैं, क्यों लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी का काम नहीं करती हैं। लेकिन एक और नेताजी थे और मानवर कांसीराम जी थे, उन्होंने इन छोटी छोटी जातियों को, इन छोटी छोटी पिछड़े हुए मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और नेताजी ने राजनीतिक हिस्सेदारी प्रजापति जी। समाज को देना शुरू की और उधर जो है हमारे कांसीराम जी ने भी राजनीतिक हिस्सेदारी देना शुरू की। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू शैलेश पांडे जी। शैलेश पांडे जी, ये क्या है जरा आप बताएंगे सर कि क्या कि हम तो वेरी फ्रैंकली पार्लियामेंट में स्पेशली जाया करते थे किसी भी तरीके से प्रेस गैलरी में बैठने के लिए जब अटल जी बोला करते थे। अटल जी का भाषण है वो अरे बाप रे खचा खच भरी रहती थी। जितने भी पत्रकार थे और तो और छोड़ो, हमसे हमारे रिश्तेदार आके पूछा करते थे कि यार वो प्रेस का पास दिलवा दो पार्लियामेंट का, अटल जी को सुनना है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लाइव ट्रांसमिशन जब से शुरू हो गया तो हम लोगों पे प्रेशर थोड़ा कम हो गया। अब जैसे अटल जी थे, मतलब अपने प्रमोद महाजन हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, और तो छोड़िए जसवंत सिंह साहब हो गए, यहां तक कि शरद पवार जी हो गए, इनको भी सुनने के लिए बहुत लोग इच्छुक हुआ करते थे। सर वो आज कहां गया वो सारा का सारा जो माहौल था वो सब खत्म हो गया, क्या है वो शैलेश पांडे साहब? आजकल जो पब्लिक डिबेट का जो स्तर है वो ऐसे गिर गया है तो मतलब शर्म आती है सुनते वक्त, वेरी फ्रैंकली। शैलेश पांडे जी। देखिए राजीव जी, आजकल मैं अभी बहुत ध्यान से मैं प्रजापति जी के बात को सुन रहा था, जी जी। तो उनके बातों से मुझे एक ही चीज, एक कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज देश के अंदर विरोधी दल जो हैं, जिसे हम कांग्रेस कह लें, समाजवादी पार्टी कह लें, और उनके साथ उनका जो कुनबा है इंडी अलायंस कह लें, आप पिछले 4-5 सालों के अंदर जो एनडी अलायंस के नेताओं ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो व्यक्तिगत प्रहार किए हैं शब्दों के माध्यम से, आप उन शब्दों को, उन वाक्यों को हम जब सुनते हैं तो ऐसे लगती है कि सारी मर्यादाएं भंग हो गई जी। आप उदाहरण के तौर पे देखें तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में मतलब एक तरह से रेतू की भाषा में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफा नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी क्या कर लेगा, इस तरह का शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक तरह से कहीं न कहीं हमारे संस्कृति, हमारे संस्कारों की कमी मैं देख रहा हूँ। और पिछले दिनों आप देखे होंगे कि जिस तरह से इस देश के अंदर हमारे ही पूर्वजों को अपमानित करने का एक षड्यंत्र, एक कड़ी सी सोची समझी साजिश में इसे कहता हूँ देश को जलाने की, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू की गई है कि कैसे मुंबई से अबू आजमी ने औरंगजेब का बखान किया, महिमा मंडन किया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में रामजी सुमन जी के द्वारा राणा सांगा जी का अपमान किया गया। और अब आज तो उससे भी बढ़कर उन्होंने कह दिया, वक्तव्य दे दिया कि डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट का क्या है? फिर उसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? उनकी तुलना वो कह रहे हैं कि आप हर मस्जिद में शिवलिंग देखते हो तो क्या हर मंदिर के नीचे हम मठ देखें? मतलब आप देखिए कि जो चर्चा है, बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए, उसका स्तर कितना नीचे हो रहा है। और ये इसका नीचे होने का एक मात्र कारण मैं जो देख रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तुष्टीकरण की जो नीति है एनडी अलायंस की, विरोधी दलों की, ये सारे संस्कारों पे, सारे संस्कृति पे भारी पड़ रही है और ये सारे संस्कार और संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं, डीएमके ने कहा कि हम सनातन को नाश कर देंगे, हिंदू विरोधी वक्तव्य जिस तरह से एनडी अलायंस के हर पार्टी के, ये समाजवादी पार्टी के वो मौर्य जी नेता थे तभी उन्होंने क्या कहा, रामचरितमानस की इन्होंने
मतलब अपमान किया। पांडे जी बाबा अभी तुलसीदास जी का अपमान किया। वकफ को ये तो आप कहां तक कितने आगे लेके जाओगे आज? आप पहले ही इन टोटल इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज के इंटरनल अफेयर्स में गुस्ताखी कर रहे हो, एनक्रोचमेंट कर रहे हो। अभी आज किरण रिजिजू ने कहा कि मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स की हम वकफ के हर बोर्ड को रिजेक्ट करेंगे। एवरी बोर्ड ऑफ वकफ विल बी रिजेक्ट बिकॉज वकफ इज हैविंग द बिगेस्ट लैंड ओनरशिप, जो प्राइवेट एंटिटी रेलवे और डिफेंस को छोड़ को सरकारी है, मगर प्राइवेट, मगर आप मैं इनको एक पूछ के आपके पास आता हूं प्रजापति, बट कहां तक आप जाओगे पांडे जी? हाउ मच इनसाइड इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी? पांडे जी देखिए, उसका जवाब प्रदीप जी यही है। मैं विरोधी पार्टियों से ये पूछता हूं कि क्या वक्फ बोर्ड के द्वारा 1800 साल के मंदिर तमिलनाडु में उस पर दावा ठोकना क्या सही था? तमिलनाडु के एक पूरे गांव के ऊपर दावा ठोकना सही था? संसद के अंदर वक्फ बोर्ड का दावा ठोकना सही था? प्रयागराज के महाकुंभ की संगम तट की पुण्य भूमि पर दावा ठोकना वक्फ बोर्ड का सही है? मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये सरकारी जगहों पर, मंदिरों पर, जो प्रशासन के जगह है, गांवों पर ये दावा वक्फ बोर्ड का थोपना या ठोकना, ये क्या सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। और जो गलतियां की गई हैं अब तक, उसे ही सुधारने का काम हमारे देश कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से लोकसभा के अंदर कह दिया है कि देखिए, वक्फ जो है वो धार्मिक विषय है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो धार्मिक स्तर पर ही चलेगा। वक्फ बोर्ड जो है, पांडे जी से प्रश्न करना चाहूंगा। जी बोलिए। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर ही सुधार लाने की जरूरत है, और वो भी सुधार इसलिए क्योंकि 10% मुसलमान जो उच्च वर्णीय लोग हैं, जो तथाकथित ठेकेदार हैं एनडी अलायंस के, उन्होंने वक्फ बोर्ड के जमीनों पर कब्जा करके रखा है। वो तो कई जमीनों को 3 स्टार होटल देने के लिए लीज पर दे रहे थे। शैलेश पांडे जी एक सेकंड सर एक सेकंड। प्रजापति जी एक वन स्मॉल इंटरवेंशन फ्रॉम प्रजापति साहब। प्रजापति साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। फिर देन आई हैव टू गो टू शैलेश जी से एक प्रश्न है। बोलिए। शैलेश जी ब्राह्मण जाति से आते हैं जी, और जैसे कई माला वगैरह पहने हुए, तो मुझे लग रहा है बहुत विद्वान होंगे निश्चित रूप से। मैं माला पहन के विद्वान हो जाता है। स्पष्ट सीधा जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा। शैलेश जी पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। हाँ ठीक है। बोलिए सर। मेरा इतना ही कहता था कि मैं चौपाई पढ़ रहा हूँ रामचरितमानस की, उस चौपाई का अर्थ मुझे बता दीजिएगा आज, ठीक है ना? मैं चौपाई पढ़ रहा हूँ। पांडे शैलेश जी आप सुन लीजिए। शैलेश जी एक चौपाई पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? अब ये चौपाई किस लिए? मैं एक चौपाई पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? राजीव जी जरा सुन लीजिए। बहुत सुन रहा हूँ, मुझे मालूम है। जय वरनाधम तेल कुम्हारा, 100 पिच क्रात कोल कलवारा। जरा इस चौपाई का अर्थ बता दें शैलेश जी जरा। ये चौपाई है रामचरितमानस में या नहीं है, ये भी बता दें मुझे। बता दें ये चौपाई रामचरितमानस में है या नहीं है, और इस चौपाई का अर्थ क्या है, इतना बताइए सर। शैलेश जी बताइए। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूँ। जी बोलिए। आप मेरे रुद्राक्ष की माला, मेरे तिलक को देख के मेरे जाति पर मत जाइए। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, मानवता के साथ साथ हिंदू धर्म मेरा है, सनातनी हूं मैं, और मैं जात पात को नहीं मानता हूं। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक हूं, और कोई भी स्वयंसेवक जाति पात नहीं मानता है, और न जात पात के बंधनों में हम बंधते। शैलेश जी चलिए, प्रजापति जी को छोड़िए ना। प्रजापति उसके ऊपर एक अलग डिबेट रखेंगे सर। रामचरितमानस की ऐसी 3-4 और भी चौपाइयां हैं सर, क्यों आप उसमें जाना चाह रहे हो? शैलेश जी जवाब दे देना। अरे छोड़ो ना सर, क्या बात कर रहे हो? सीधे उसमें अटक जाएंगे। अरे उसमें अटक जाएंगे सर। तुम्हारा 100 पिच क्रात कोल कलवारा जी, इस चौपाई का सीधे अर्थ समझा दे, हमें भी समझ में आ जाए ना, हम भी सीख लें, शायद हमें ज्ञान ना हो। चलिए सर, ये चौपाई जब शैलेश पांडे जी को मालूम पड़ जाएगा वो बता देंगे। फिलहाल व्यास जी 1 सेकंड। व्यास जी ये बताइए सर कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, आई एम सॉरी आई एम कमिंग टू महाराष्ट्र, वी वर टॉकिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लाइक वक्फ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कमिंग बैक टू महाराष्ट्र सर, वी आर इन महाराष्ट्र राइट नाउ। व्यास जी ये बीड में क्या चल रहा है? 1 more murder is taking place. Sir, what is going on here? Sir,
दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी कि भीड़ में सर ये मामला खत्म ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज को लेकर के. आई एग्री दैट इज नॉट नथिंग टू डू विद आइदर धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर इज अ सस्पेंडेड पुलिसमैन हु सेज कि उसको कहा गया था कि वो वाल्मीकि कराड़ का एनकाउंटर करके मार दिया जाए. सर व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? प्लीज व्यास साहब जरा रोशनी डालिए इस पर प्लीज. सुशील व्यास जी. राजीव जी, जी सर. मैं आपकी और नाम्बियार जी के बीच में शुरुआती कमेंट्स को सुन रहा था. जी जिन महान विभूतियों का आपने नाम लिया संसद में चर्चाओं के दौरान, मैं भी उनको करीब करीब सुनते रहा और बड़े ध्यान से सुनते रहा. उसमें एक नाम और आप मेरी तरफ से अगर चाहें तो जोड़ सकते हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी का. जी बिल्कुल बिल्कुल. उनको पूरा देश अरे बहुत सर, ध्यान से कमाल. उनकी बातों को कमाल. सुनता था. मैं भी Yes, I मेरे agree को with भी अभी भी बड़ा आकर्षक उनके भाषण लगते हैं. मैं यूट्यूब पे कभी कभी उनके सुन लेता हूँ जी, संसद में जी, दिए सर, गए जी, जी. बस. युवा तो युवा निश्चित रूप से मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी अभी कहा कि राजनीतिक तौर पे जो चर्चाएं हैं उसका स्तर भाषा के जहां तक सवाल है संयम का गिरा है. ये हम बिल्कुल नतमस्तक होकर मान लेना चाहिए. और ये हमने आशा नहीं की थी कि हमारे भारत जैसे देश में जो सांस्कृतिक प्रधान देश है उसमें इस तरह से हमारे राजनीतिक चर्चाओं का सार्वजनिक रूप से जो हो रही जी. है उसका स्तर गिरेगा. अब उसी से संदर्भ में आपने मुझे प्रश्न पूछा कि भीड़ में एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर पुलिस कर्मचारी, वो ऑफिसर तो मेरे ख्याल से नहीं है, जी 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 कांस्टेबल जी या जी कुछ हो. जी जी. और तो उसने बयान दिया है कि मुझसे ये कहा गया धनंजय मुंडे जी के द्वारा कि उसका आप एनकाउंटर कर दीजिए. अब बजाज जी, आप अनेक वर्षों से पत्रकारिता में जी. हैं और हम अनेक वर्षों से राजनीति में भी हैं और वकालत के पेशे में भी हैं. अब किसी बड़े व्यक्ति को जो कस्टडी के अंदर व्यक्ति है पुलिस की और जुडिशियल कस्टडी में, उसका एनकाउंटर करवाना होगा तो वो कांस्टेबल लेवल के आदमी का संपर्क नहीं करेगा. अगर ये इतने बड़े काम को अंजाम भी देना होगा तो उसका एक तरीका अपना अलग होता है. और वो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ठीक है, आज हो यह रहा है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भी सार्वजनिक रूप से आकर के बयान दे देता है और उसकी सारी जवाबदेही हम लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो कि गृह मंत्री हैं उनके नाम से पूछना शुरू कर देते हैं. अब सवाल ये उठता है कि उस व्यक्ति का इस संतोष देशमुख हत्याकांड में क्या रोल है जो आज बयान दे रहा है. तो फिर 4.5 महीने हो गए इस हत्याकांड को, इतने दिन मौन व्रत क्यों था उसका, और उसका क्या रोल है पूरी जांच प्रक्रिया में. जांच तो हुई है, तो आप भी मानते हैं. आरोपी पकड़े गए हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है. तो इतने दिन मौन व्रत, अगर इतनी अहम उसके पास जानकारी थी तो इतने दिन क्यों उसने मौन व्रत धारण किया. मात्र एक राजनीतिक सेंसेशन फैलाने के चक्कर में ये अगर कोई इस तरह का बयान दे और उसको कोई आधारहीन, जैसे हमको सिखाया गया है कि किसी भी ठोस आधार के बिना हम किसी में विश्वास नहीं कर सकते. आस्था एक ठोस आधार मांगती है. तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि एक वरिष्ठ, आज धनंजय देशमुख, धनंजय मुंडे अपने संघर्ष और अपने लंबे राजनीतिक करियर में एक अपना स्थान बना चुके हैं. ठीक है, वो विवाद नहीं विवाद उससे एक परे उस चीज को है, उसका न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उस पर मैं कोई कहना नहीं चाहता. लेकिन क्या वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेगा और वो इस काम के लिए संपर्क करेगा और करेगा तो इस आदमी के पास इतने क्या ताकत है कि वो उस इतने गंभीर कार्य को अंजाम दे सकता है. ये सारी चीजें राजनीतिक में एक अफवाह साहब कहने का मतलब ये हुआ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. हाँ जी. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जान करके इस इशू को दोबारा गरमाया जा रहा है, क्योंकि इट वाज आउट ऑफ द न्यूज फॉर सम टाइम कि धनंजय मुंडे का जो इशू है और जनाब वाल्मीकि कराड़ साहब जो हैं उनके साथ में उनके जो साथी थे वगैरह वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट फाइल हो गई है. अब शायद ऐसा अटेम्प्ट है कि किसी भी तरीके से धनंजय मुंडे का नाम चार्जशीट में मतलब कहीं से भी आ जाए, लग ऐसा रहा है मुझको. Do you agree with me on that, sir? मैंने कहा ना बजाज जी, हर आदमी अपने अपने जहाँ तक भीड़ है. इसके पहले कोई आके एमएलए बोल रहे थे, उसके पहले एमएलए के आदमियों के खिलाफ कुछ हुआ, उसने ये कर दिया, वो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है फला. अरे भाई, सारी चीजें आपको भीड़ में नजर आ रही है क्या? ये महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में या देश के अन्य इलाकों में नहीं हो रही क्या? राजनीतिक कार्यकर्ता देश के अन्य इलाकों में इतना जीवन का स्तर अपना उठाने लिए क्या? आपको खाली भीड़ नजर आ रहा है. ये होता है कि वर्तमान में बता रहा हूं,
हालांकि मैं उस दल का प्रवक्ता नहीं हूं, शैलेश जी है, वो अधिकृत रूप से बोलेंगे। लेकिन एक जो मुख्यमंत्री है, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री और प्रचंड बहुमत की संख्या के साथ विधानसभा में नेतृत्व कर रहा है, उसको किसी न किसी तरह से, क्योंकि उसके पास गृह मंत्रालय है, उसको बदनाम करने की ये साजिश चल रही है इस राजनीतिक घटनाक्रम के, जो ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जब वो सीएम थे, लाड़की बहन स्कीम पूरे महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी से आइडेंटिफाई करता था, ये लड़का भाऊ है हमारा, ये लड़का भाऊ है। मगर आज फिर वो अनाउंसमेंट आया कि करीबन 8 लाख महिलाओं को 500 रुपए मिलेगा, यानी 1000 रुपया आप 8 लाख महिलाओं से और काटने वाली लाड़की बहन से। तो बार बार यही प्रश्न उठता है कि शिंदे जी का स्कीम है, क्या हो गया अब ये भी। तो किस प्रकार से देखते हो, क्या ये स्कीम चल पाएगा व्यास जी? नाम्बियार जी, आपके अंतिम वाक्य का जवाब मैं सबसे पहले दे दूं। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना 27 जून को उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी ने वित्त मंत्री के रूप में सदन में घोषणा की थी, जो जुलाई से लागू होनी थी, हुई। उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये वो योजना है जो चलेगी। कल हम पावर में नहीं भी रहेंगे तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे, लेकिन ये योजना चलेगी। ये योजना तो अब चल चुकी। इस योजना को, ये जन कल्याण की योजना को कोई बंद करने की सोच ही नहीं सकता। अब जो आपका सवाल आया 500 रुपये का, अब मुझे बताइए कि जिस दिन 11 जुलाई या 12 जुलाई के दिन ये एक गाइडलाइन आई थी कि ये जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के अंतर्गत कौन कौन उसमें क्वालिफाइड कर सकते हैं, 2.5 लाख का है, एक 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, कई शर्तें थी उसमें। सरकार के एक किसी अन्य स्कीम से उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो 1500 रुपये से ज्यादा है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, और उससे कम है तो उतना कम करके उनको बाकी का अमाउंट 1500 रुपये पूरा करके महीने का दिया जाएगा। अब चूंकि उस समय जैसे हुआ 2,43,00,000 महिला हमारी बहनों को वो लाभ मिलता रहा, लेकिन बाद में ये हुआ कि इसको रिव्यू किया जाए कि भाई सही मायने में उस मापदंड पे कितनी हमारी बहनें बैठती हैं। तो उस प्रक्रिया में अब ये पता चला है कि हमारी जो एक नमो शेतकरी योजना है उसमें ऑलरेडी हमारी कुछ बहनों को सरकार की तरफ से 1000 रुपया महीना मिल रहा है। तो चूंकि जब 1000 रुपया महीना नमो शेतकरी योजना के अंतर्गत हमारी उन बहनों को ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो 1000 रुपया कम करके बाकी का 500 रुपया उन बहनों को कंटिन्यू मिलता रहेगा। उन बहनों को 1500 रुपये की टोटल मंथली जो समर्थन है वो कहीं कम नहीं हो रहा है जी। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू गाइडलाइन कोई बदली नहीं गई है। मैं अगर नाम्बियार जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, बैठा हूँ, लेकिन आप बताइए कौन सी गाइडलाइन को बदला गया? गाइडलाइन के तहत ही अगर हमने कोई फैसला लिया है तो मान्य होना चाहिए। यूबीटी आप पे आरोप कर रहे हैं कि ये 500 अब जीरो होने वाला है। अभी 1500 500 हो गया, 500 आगे जाके जीरो होने वाला है। इलेक्शन प्रॉमिस एकनाथ शिंदे जी ने किया था, अब जीरो पर लेके आएंगे, ये आरोप है यूबीटी का। अब नाम्बियार जी, एक बात मैं और कह दूं कि ये मात्र एकनाथ राव जी शिंदे जी का आश्वासन नहीं था महाराष्ट्र की बहनों के लिए। ये हमारे उस तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में हमारे तीनों दलों की मजबूती से चल रही सरकार जो विकास की तरफ उन्मुख थी, और उसी विकास को देख करके महाराष्ट्र की जनता ने हमें पुनः निर्वाचित करके आशीर्वाद दिया है। तो ये सामूहिक प्रयास था और वो चलेगा, उसको कोई बंद नहीं। अब यूबीटी के मनोदशा को तो हम ज्यादा सार्वजनिक रूप से चर्चा आजकल करते नहीं, जनता ने उनको जवाब दे दिया। 23 नवंबर को जो चुनाव हुआ, कहां से वो कहां पहुंच गए, और अगर फिर चुनाव हो जाएंगे सरपंची तक हारेंगे वो, आप चिंता मत करिए। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, एक तो जो वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रोटेस्ट हुई मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसके ऊपर बड़ी हाहाकार मच गई है। एक बार फिर डिमांड आ रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को खारिज किया जाए। दूसरा, अखिलेश यादव साहब को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने टोटी चोर बुलाया है। टोटी जो होती है वो मतलब टैप जो होते हैं वो, क्योंकि अपने घर से वो बाहर निकल रहे थे। उसके बाद किसने किया, क्या किया, दैट्स अ सेपरेट इशू, इट हैड नथिंग टू डू विद अखिलेश यादव साहब, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है। उसके अलावा बार बार आपके ऊपर यह अटैक हो रहा है, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि जब भी देश के साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 रिपील हुआ, 35A रिपील हुआ, वर्बल ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको कहा जाता है, विच इज नॉट सैंक्शन इवन बाय द होली कुरान, उसको जब बैन किया गया तब भी आप लोगों ने उसको अपोज किया। आज वक्फ बोर्ड के मामले में फॉर एग्जांपल, जैसे मुसलमानों में, सर आप माशाल्लाह, आप तो खैर
उसमें अशराफ में ही आते हैं, अशराफ, अजलाफ और अजलाफ। जो अजलाफ बेचारे हैं, जो अजलाफ बेचारे हैं, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है कहीं पर भी। ये कहा जाता है बीजेपी द्वारा, कहते पूरे 32 के 32 जो वक्फ बोर्ड हैं उसके अंदर आपको सिर्फ सैयद मिलेंगे, फारूकी मिलेंगे, सिद्दीकी मिलेंगे, खान मिलेंगे, शेख मिलेंगे, कोई अंसारी नहीं मिलेगा बेचारा, कोई सलमानी नहीं मिलेगा, कोई मुकरी नहीं मिलेगा। तो सर इसमें क्या चिंता का विषय क्या है आपके लिए, ये बताइए ना सर फारूकी साहब, कांग्रेस के लिए। है ना, अब आपको शर्मा मिलेंगे, अवस्थी मिलेंगे, मेहता मिलेंगे ना सर, हाँ, बिल्कुल। तो आपको अब खुश हो जाइए ना सर। तो आप बताइए ना, आगे बोलिए। एक सही है। तब अब सवाल का जवाब दे सर, ये तो चलो मजाक की बात हो गई, आगे बोलिए। नहीं मजाक नहीं है सर, जी बोलिए सर। इस गवर्नमेंट ने इस सारे मामले को मजाक बना के रख लिया है जी, उसको जमीन हड़पना है। बहरहाल इसमें मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि जितनी वफ़ के साथ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जो इंडिविजुअल्स लगे होंगे, कोई संस्था लगी होगी, उनमें गड़बड़ी रही होगी, लेकिन हिंदुस्तानी कानून के तहत जो ये मामला चल रहा था उसमें हमारे तरीके हैं, उसके तरीके पे उन गवर्नमेंट को उसको सुधार करना चाहिए था, न कि सिर्फ सफ़े हस्ती से वफ़ ही को ख़त्म कर दिया। यानी वो कोई कानून नहीं था क्या, वो जो आज तक वक्फ बोर्ड चल रहा था या जो जिस तरीके से ये चलाया जा रहा था उसके अंदर कमी ज़्यादती हो सकती थी और उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हो सकती थी, उसके अंदर घपले हो सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कानून है, उस कानून के तहत उसको सही करना चाहिए था। आपने तो पूरा उसका मकसद ही बदल दिया, उसका मतलब ही बदल दिया। उसके बाद आप चंडीगढ़ में जाके तकरीर कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया, क्यों नहीं वो 50% मुसलमानों को टिकट दे देती, क्यों नहीं राज्यसभा उनको दे देती। मुझको ये बीजेपी और प्रेजेंट गवर्नमेंट ये बताए कि कितने पसमानदा और कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया, कितने एमपी बनाए, कितने एमएलए बनाए, कितने मिनिस्टर बनाए। तो ये सर जात पात को सामने रख के ये लड़ाने वाली बात करते हैं और फिर उसके बाद शिकायत करते हैं कि देखिए इसका स्तर गिर गया, राहुल जी इस तरीके से बोलते हैं। अरे दुनिया भर के गंदे लोगों को आप अपने वहाँ ले लेते हो, जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। आपने एक वॉशिंग मशीन लगा के रखी हुई है, आपके पास आ गए, वो धुल के सफ़ेद हो गए, वो आपके वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए, आपके वहाँ मिनिस्टर बन गए, अब उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। जब तक अपोजिशन में रहते हैं तो वो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं, तो उनके ऊपर आप सारी एजेंसियों का मामला लगाते हैं, उनके ऊपर जितने भी कायदा कानून होता है। सर ये भी कहा जा रहा है फारूकी साहब कि आज की तारीख में ज्यादातर 80% मुसलमान जो हैं वो तो बड़े खुश हैं वक्फ के कानून से। सिर्फ आप जैसे जो एलीट लोग हैं, आप मतलब उच्च स्तरीय लोग जितने भी हैं, मतलब आप तो ब्राह्मण है ना, मतलब मुसलमानों में अरे नहीं सर, आप सब लोग जो हैं आप बड़े खुश हैं सर, आप बड़े दुखी हैं। सर ये बीजेपी बाकी सारे जितने वो तो बेचारे बड़े बहुत खुश हैं, वो तो खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है सर जी कि एक वर्ड पकड़ लेते हैं, जहाद पकड़ लिया उन्होंने जी। हाँ, अब वो पसमानदा पकड़ लिया। हमको भी नहीं मालूम था पसमानदा। हम लोग के पास सर ये सब कुछ नहीं है। जो गरीब है बेचारा, जिसकी मदद हो सकती है, तो लोगों ने अपनी ज़मीनें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ की थी, यानी उनकी नज़र की थी कि इससे फ़ायदे कीजिए। तो मोदी जी अच्छा होता कि उसको अच्छे तरीके से उसको डेवलप करके उसके लिए जो भी करके गरीबों के लिए करते, लेकिन उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब वहाँ पे वो ये ज़मीन इसकी है, वो ज़मीन उसकी है, उसको दे दो। अभी जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है सर, जो अंबानी का जो मकान है, इससे बड़ी जगह गई है, लेकिन ये टॉपिक जो आप छेड़ने वाली बात है कि अब जिहाद एक टॉपिक उनको मिल गया, पसमंदा अब उनको मिल गया, मगर ये टॉपिक आप ही के लीडर्स देते हैं। अभी ये एमपी है हफीजुल हसन जेएमएम झारखंड के, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर है, उनका बयान है कि शरिया सबसे आगे है, उसके बाद संविधान आते हैं। तो एक जब आप ही के लीडर्स इस प्रकार से बयान करते हैं तो देश में मैसेज चला जाता है कि देखो शरिया इज मोर सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट द शरिया विल प्रिवेल एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहां से आ रहे हैं? इलेक्टेड एमपीज कह रहे हैं, इलेक्टेड मिनिस्टर्स कह रहे हैं। फारूकी साहब, ये अपॉर्चुनिटीज आप ही तो दे रहे हैं। देश के अंदर कायदा कानून है, आप उसके तहत जो भी गलत काम करता है, चाहे वो एमपी एमएलए हो
चाहे अपोजिशन का हो चाहे सत्ता का हो, उसके ऊपर कायदे कानून के तहत काम करना चाहिए। ये बिला वजह का हिंदू मुस्लिम, मैं जब देखता हूँ यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो हिंदू मुसलमान और हमारा मंदिर और हमारी मस्जिद, ये सब क्या है? अरे देश के अंदर कहाँ जा रही है, कहाँ महंगाई है, कितनी नौकरी हो रही है, कितने इन्होंने सैटेलाइट शहर बनाने वाले थे, 200 तो ये नए शहर बनाने वाले थे, क्या क्या इन्होंने। बट क्या ये बातें करने की हफीजुल जरूरत हसन है। का स्टेटमेंट सही था फारूकी साहब, यू आर अ वेरी लर्नड पर्सन, आप मींस आपका रुतबा अलग है, आप इसको कैसे देखते हो, क्या ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए? नहीं सर, मैं आप किसी को पर्सनल लेवल पे मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर वो कानून के तहत गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और मैं पर्सनल लेवल पे बोलने जाऊँगी ये गलत है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसको एनालिसिस नहीं किया है। लेकिन मुझको एक चीज़ मालूम है सर, कि वफ़ के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, नहीं 100% सही, अगर उसमें कुछ खराबी है, कुछ गलती थी, उसको आप सही करते। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ हमारे बाप दादाओं ने अपनी कमाई से की हुई वो गरीबों के लिए दी है, और उसमें अपना मकसद भी लिखा है। उन्होंने ऐसा नहीं है सर कि ऐसी दे फारूकी दी साहब, कि जो आप कि वो लीडर, अब मुस्लिम जो मंत्री थे वो शरिया बड़ा या संविधान, ये एक डिबेट उन्होंने खड़ा कर दिया है, तो इसमें कुछ बोलना चाहोगे, शरिया बड़ा है या संविधान? बिल्कुल मैं बोलूँगा सर। मुझको ऐसा लगता है कि हर इंसान को जो रिलीजन है वो उसके घर में है, और हमारे वहाँ डूज एंड डोंट्स है। जी। जैसे इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स है सर, हर रोज़ा, नमाज, ज़कात, वहदानियत मतलब सिंग एक अल्लाह। तो ये सब चीज़ों को छोड़ने के बाद मेरे वहाँ बहुत से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है। लेकिन कोई आके मुझको ज़बरदस्ती वो सिचुएशन चेंज करने बोले तो मैं उससे इनकार करूँगा। मेरे वहाँ जो 5 पिलर्स है मैं वो छोड़ नहीं सकता। संविधान बड़ा है या शरिया? नहीं, और पूरी बात सुन लीजिए सर, आप मुझको हंसाइए मत कि संविधान बड़ा कि वो शरह बड़ी। मुझको उस संविधान में पूरी आज़ादी दी है, मेरे 5 पिलर्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है जी। तो मैं वो संविधान अगर फॉलो करता हूँ सही तरीके से, तो मैं पक्का मुसलमान रह के संविधान को नंबर 1 तरीके से मान सकता हूँ। इसलिए नंबर वो आगे और ये पीछे, इसका कोई So सवाल in ही effect नहीं what है। you are saying, फारूकी साहब, and I'll पांडे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने देख लिया आपने उंगली खड़ी करी अपनी, मैं आ रहा हूं आपके पास। फारूकी साहब, what you are saying is कि ये डिबेट निरर्थक है, कहने का मतलब ये हुआ that you can follow the constitution also and you can follow Islamic law also. Effectively that's what you are saying. All right. So and the constitution of India gives you that right. सबसे बड़ी बात है, देश का संविधान जो है, वो देश के संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे, उनका बर्थडे कल था, बर्थ एनिवर्सरी उनकी कल थी, बाबा साहब अम्बेडकर की। सो इन इफेक्ट you can be a good Hindu, you can be a good Sikh, you can be a good Muslim, you can be a good Christian, you can be a good Jew, you can be anybody, and at the same time follow the Constitution of India. That's it, because the Constitution gives you that right. वो हक आपको संविधान देता है जी। स्मॉल इंटरवेंशन फ्रॉम यू शैलेश पांडे जी बिफोर आई गो टू प्रजापति साहब जी। पांडे जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए प्लीज जी। धन्यवाद। देखिए, फारूकी जी मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान है ये जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कैसे कांग्रेस में हैं, ऐसे विचारधारा के पार्टी के। अभी वो जो कह रहे थे कि हमें कहां से कहां पहुंचना चाहिए था, दुनिया कहां से कहां जा रही है, तो मैं फारूकी जी आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो हम देश में सुधार करना चाह रहे हैं और समय समय पर इस देश में, दुनिया में, हर धर्म में सुधार हुआ है। हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है सदैव सुधारवाद पे ही ये आगे बढ़ा है और प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब उस बीच में वक्त में मान लीजिए कोई भी कमियां थी, उसमें कुछ सुधार करने थे, तो उसके लिए जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का दंगा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में किया गया कि लोग सड़कों पर उतर के घरों में घुस के मारे, एक ही घर के पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, 3 हत्याएं मुर्शिदाबाद में की गई। वहां से 500 से अधिक परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा की तरफ पलायन किया गया है। और आप एक एक बहन बेटियों माओं की आप उनकी बातों को सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई आज शासन है या नहीं है।
कानून व्यवस्था है या नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ एक शब्द नहीं बोल रही हैं। पूरे देश में एनडीए अलायंस के जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी एकदम चुप हैं। अगर यही किसी दूसरे तरफ से होता तो आज पूरा आकाश पाताल एक कर देते थे ये। लेकिन जब जब हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनका धर्मांतरण होता है, उनका पलायन होता है, तब वो इस पर एनडीए अलायंस के सभी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। ये देश के लिए घातक है। हिंदू समाज बहुत ध्यान से इस चीज को देख रहा है, इस पीड़ा को, इस दर्द को, और ये कोई भी बर्दाश्त करेगा नहीं। और Right. I'll come back to you, sir. नहीं, झारखंड के जो सांसद है वो कहते हैं कि हम संविधान से सर सांसद नहीं है, मंत्री है वो, मंत्री है। मंत्री जी हफीजुल हसन। अगर मंत्री जी ये कह रहे हैं कि संविधान से बढ़ के शरिया है तो जी। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। और वो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, संविधान के निर्माता, उन्होंने वापस लिया है सर, वापस ले लिया बयान। ऊपर ये बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने ये वापस देश ले के लिया लिए सर, ये अपना बयान संविधान का वापस लिया। अपमान है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान है। और I देश agree. में इस तरह से कोई भी सर बात he should have avoided this. सही नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं मानता हूं ये इस किस्म का इररिस्पांसिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान कभी देना नहीं चाहिए किसी को भी। प्रजापति साहब, यू सीम टू बी बिजी ऑन द फोन, लगता है कि आप फोन पर बिजी थे अभी, सॉरी। नहीं प्रजापति साहब आप ये बताएं सर, चलिए ये तो वक्फ, अभी देखिए क्या क्या डिस्कशन चल रहा है वक्फ के ऊपर। नहीं, discussion पहले चल रहा है। मैं सर एक पहले सेकंड मैं- सर पूरी बात तो सुन लीजिए एक सेकंड, उसके बाद आप बोलेंगे, आराम से बोलें। मेरा जरा सवाल सुन लें। वक्फ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, मुसलमानों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन चल रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, वगैरह वगैरह। आपने जो बात बोली, मैं समझता हूं प्रजापति साहब ने जो बात बोली वो सबसे अहम बात है कि यार आज तक जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, मोस्ट ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब। 1947 में 1947 में हमको आजादी मिली है, 78 साल हो गए सर, 78 इयर्स। व्हाट आर वी डूइंग? अब आप बोलें सर, प्रजापति साहब आप बोलें प्लीज, गो अहेड। जी राजीव जी, जी राजीव जी, बोलिए भारतीय सर। जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके यहाँ सनातन की और हिंदू की बात कर रहे हैं। ये सनातन और हिंदू की तो बात करते हैं, लेकिन 2014 में इनकी सरकार बन गई, जी। 2019 में इनकी सरकार बन गई, 2024 में इनकी सरकार बन गई। पूरे देश के अंदर 543 सीटें हैं, 543, और 543 में लगभग 450 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। ये शैलेश पांडे जी बताएं और इनकी पार्टी की तरफ से पूछ के बताएं और पार्टी के लोगों से पूछ के बताएं, 450 में एक भी प्रजापति को टिकट देने का काम आपने क्यों नहीं किया? क्या प्रजापति हिंदू नहीं है? क्या प्रजापति सनातनी नहीं है? क्या प्रजापति से आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है? क्या प्रजापति इस नाम पर हिंदू नहीं रहता है? 543 सीटें राजीव जी, दर्द होता है मुझे, दर्द होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 543 सीटों में बताइए, ना 2014 में एक भी टिकट दिया आपने, ना 2019 में एक भी टिकट दिया आपने, ना 2024 में एक भी टिकट दिया। क्या प्रजापति हिंदू नहीं रहता इस समय पर आपके लिए? केवल हिंदू वोट लेने के लिए प्रजापति हिंदू है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। उसके बाद आपने एक राज्यपाल बनाया हो 27 प्रदेशों में, एक किसी प्रदेश में आपने छोड़िए विधायकों के कितने टिकट दिए? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 टिकट देने का काम आपने केवल किया, और वो भी एक जगह ऐसे दिया क्योंकि वहां कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है, इसलिए आपने वहां पर टिकट देने का काम किया। सबसे बड़ा मेरा प्रश्न ये है कि 543 लोकसभाएं उत्तर पूरे भारत के अंदर, जिसमें 450 टिकट, और छोड़िए एक चीज और बताता हूं, अभी आप लोगों ने 97 जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं, 97 उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मिलाकर के, और 27 आपने घोषित किए हैं राजस्थान के अंदर, 124 आपने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष घोषित किए। 124 में अफसोस के बात कह रहा हूं कि 124 में एक भी कुम्हार नहीं है, एक भी प्रजापति नहीं है। क्या प्रजापति हिंदू नहीं रहता नहीं है? क्या प्रजापति सनातनी नहीं है? बताएं शैलेश पांडे जी, सीधा सीधा जवाब दें। घुमा फिरा करके जलेबी इमरती बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा जवाब देने की जरूरत है।
जी। प्रजापति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आरोप है योगी आदित्यनाथ जी ने फिर आप पे लगा दिया है कि पहले आपने जिस प्रकार से राणा संघ का अपमान किया, फिर औरंगजेब का तारीफ कर दिया, अब भी तारीफ कर रहे हो, और आगे जाके अभी काशीराम जी का, उनका कहना है कि काशीराम जी का आपने अपमान किया, कहता कि मुलायम सिंह नेताजी ने उनको यहां से लोकसभा के टिकट से भेज दिया था, एमपी बने थे, तो काशीराम जी का भी अपमान अब करने लगे योगी जी, ऐसे आलोचना कर रहे हो आप पर प्रजापति जी? देखिए प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी बहुजनों की पार्टी बन चुकी है, इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब हजम नहीं हो रही इस बात को, क्योंकि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए की विचारधारा पर पीडीए की बात कर रहे हैं, अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं, मानवर कांशीराम जी के सपनों पर चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव जी। अंबेडकर के संविधान को और सभी शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और जितने भी दलित समाज के लोग हैं उन लोगों के हिस्सेदारी, हक हकूक की बात कर रहे हैं। मैं शैलेश जी से जो मैंने प्रश्न किया है, आप मेरा प्रश्न का उत्तर दिलवाएं पहले कि ये आखिर 2014 में 2019 आंकड़े के साथ बताइएगा। मैंने शैलेश जी अगर आरोप गलत लगाया हो तब भी आप मुझे बता दीजिएगा, आप प्रवक्ता हैं, और नहीं है तो आप हमें आश्वासन दिलवाइए कि क्या प्रजापति हिंदू नहीं है, और हिंदू है तो आखिर क्यों नहीं लोकसभा भेजा जाता, क्यों आपके द्वारा टिकट नहीं दिया जाता, क्यों राज्यपाल नहीं बनाया जाता, क्यों किसी संगठन के महत्वपूर्ण पद पर। और बात मैं बताना चाहता हूं, किसी भी पूरे भारत के अंदर किसी भी संगठन पर मजबूत पद पर प्रजापति समाज का कोई व्यक्ति नहीं है आपके संगठन के अंदर। एक नाम हो तो मुझे बताने का भी कष्ट करें। पूरे भारत, मेरा सीधा आरोप है पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रजापति को संगठन में महत्वपूर्ण पद पर बिठाने का काम किया हो, वो भी बताने का काम करें। तो सर आपसे एक सवाल पूछ लूं प्रजापति जी? जी बिल्कुल। जिस चौपाई की आपने बात करी, इसी चौपाई की बात कर रहे हैं ना आप? जे बरनाधम हाँ। तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा, इसी की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी जी। तो कहने का मतलब यह हुआ, शैलेश पंडित जी जरा ध्यान से सुने, तेली कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं, यानी वर्ण में जो नीचे हैं। नाउ देयर इज अ डिस्प्यूट हियर सर। प्रजापति साहब जरा ध्यान से सुने, ये स्कॉलर्स जो हैं जिन्होंने रामचरितमानस के ऊपर पीएचडी करी है वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि ये लेटर इंटरपोलेशन है, ये वास्तविकता में संत तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है, ये भी कहा गया है। प्रजापति जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इसके ऊपर समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा एजिटेशन कर रही है आज की तारीख में। सर बोलेंगे कुछ इसके बारे में? प्रजापति जी बिल्कुल बोलिए सर। जी बिल्कुल। मैं तो पहले भी इसके बारे में एक बार बोल चुका हूं राजीव जी, और बड़े मुखर होकर के मैंने कहा था, जे वर्णादम तेल कुमारा सो पिचकरात कोल करवारा, मतलब जो वर्णों में नीच हैं, नीचे नहीं है, नीच है। कौन कौन नीच है? कोली, कुमार, तेली, चांडाल। और मैं तो राजीव जी आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पहले भी इस बात को कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री को भी इस चौपाई पर, मोदी जी को भी इस चौपाई पर आपत्ति होनी चाहिए रामचरितमानस की। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को तेली जाति का बताते हैं, वो भी, क्योंकि इस चौपाई के अनुसार तेली जाति को भी नीच माना गया है। तो ऐसी चौपाई है जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कुम्हार नीच है, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं। लिखी नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन वो लिखी नहीं है सर। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में उत्तर रामायण है ही नहीं, कि सीता जी को वनवास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो है ही नहीं, वो बाद में आया सर, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग सर। आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं प्रजापति जी। शैलेश पांडे जी आप बोलें, प्लीज गो अहेड सर। जी मैं राजू जी इनके दोनों बातों का मैं जवाब देना जी बोलिए सर। देखिए विषय ऐसा है कि मुगलों के समय से भी जो भी शिक्षा पद्धति थी हमारी, उसके अंदर मिक्सिंग किया गया। अंग्रेजों के समय भी मैक्स मुलर और जो रहे उस समय के इतिहासकार, जॉन मैकाले और ये लोग जनरली जर्मनी के जो मैक्स मुलर थे उनसे ही ज्यादा वो लंदन में रहते थे सर, नाम उनका जर्मन था लेकिन थे अंग्रेज। जी बोलिए सर। जी
तो ये लोग किस तरह से, अंग्रेजों ने जो एक उनकी पद्धति की थी, फूट डालो राज करो, किस तरह से, देखिए हिंदुस्तान में जातियां नहीं थी, जातियां बनाने का काम ये अंग्रेजों ने किया है आज। और किस तरह से शिक्षा पद्धति के अंदर वो जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। किस तरह से शिक्षा पद्धति के अंदर मिक्सिंग किया जाए, उसमें जात जात में झगड़ा दिखाया जाए, वहां पे उच्च नीच दिखाया जाए, ये सारी चीज कर समाज में भेद करने का कार्य अंग्रेजों ने वो शिक्षा पद्धति में किया। और बाद में कम्युनिस्टों ने वो शिक्षा पद्धति में वही विष डालने का काम किया है, जिसपे मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते देश के सभी नागरिकों को कहूंगा कि वो सारी चीजों पे हमें सावधान रहना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री से भी ये मांग करता हूं कि इस तरह का जो इतिहास अभी भी मिक्सिंग इतिहास है, गलत इतिहास है और गलत शिक्षा है, इसका पूरा से फिर से पुनर्लेखन होना चाहिए ताकि सही ज्ञान सभी को मिल सके। और दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल, दूसरी बात, प्रजापति समाज की जो बात कर रहे हैं, कुम्हार और प्रजापति समाज, जी बोलिए। जी देखिए, कुम्हार समाज हमारे लिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे लिए बड़े ही पूजनीय है। कभी भी ब्रह्मपुत्र है, पूजनीय छोड़िए, ब्रह्मपुत्र छोड़िए, सीधे सीधे हिस्सेदारी की बात करिए, भागीदारी की बात करिए, पूजनीय छोड़िए, हमें मत पूजिए, लेकिन हमें MP MLA बना दीजिए, हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, राज्यपाल बना दीजिए, और जो है अपने संगठन में महत्वपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष पद बना दीजिए और महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दीजिए। पूजनीय छोड़िए सर, वो पूजनीय आप अपने पास रखिए, कोई बात नहीं है, हमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दीजिए हमारे समाज को। सीधे से सीधे सर, राजीव जी मुझे दुख होता है, 2014 में इनकी सरकार बनाई, 2019 में इनकी सरकार बनाई, 2024 में इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने एक टिकट नहीं देने का काम किया पूरे और अभी तक आपको काम किया है। अगर दिया हो तो शैलेश जी बता दें मुझे, सीधे सीधे शैलेश जी बता दें। और शैलेश जी, बहुत पुरानी डिमांड है कि शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए कुम्हार और प्रजापति समाज को, आज तक नहीं हुआ सर, अभी भी ओबीसी हैं। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए पांडे जी, बोलिए। प्रजापति जी, जब से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, वो विशेष तौर से संविधान आधारित जो SC ST OBC समाज है और दबे कुचले पिछड़े समाज हैं, उनके लिए सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पे वो काम कर रहे हैं। सर ये शैलेश जी घुमाइए मत, जलेबी मत घुमाइए, सीधे सीधे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, सीधे सीधे कि आखिर चलिए ये तो स्वीकार कर लीजिए नहीं मिला, ये तो स्वीकार कर लीजिए नहीं मिला। और ये विश्वास, अभी राजीव जी ने एक प्रश्न आपसे पूछा, आपकी सरकार ने, योगी जी ने 2018 में कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति में फिर से सर्टिफिकेट देने का काम किया। आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर कुम्हार समाज को न्याय क्यों नहीं मिलता है? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप ही मुझे विश्वास दिलाइए कि हाँ कुम्हार समाज को न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। हाँ, अगली बार को 2029 में जब चुनाव होंगे तो कुम्हार समाज को 2-4 टिकट दिलाने का काम करूंगा, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर बैठाने का काम करूंगा। आप विश्वास दिलाइए ना, हमें विश्वास दिलाइए, ये जलेबी मत घुमाइए इधर उधर की, ठीक है ना? ये जलेबी नहीं, हमें इमरती नहीं चाहिए, हमें चाहिए हक, हमें चाहिए हुकूक, हमें चाहिए हिस्सेदारी, हमें चाहिए भागीदारी। देखिए, सभी को उनकी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वही मैं कह रहा हूं कि विशेष तौर से ओबीसी समाज पर इस बार ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। आपने देखा विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हमने ओबीसी समाज के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण काम किया है। और आपकी ये जो मांग है, ये मांग भी मैंने और आपकी मांग पूरी की जाएगी। हमें कुल्लड़ मत दीजिए, कुल्लड़ नहीं बनाना है दोबारा जाकर के, हमें कुल्लड़ नहीं बनाना है दोबारा जाकर के, हमें कुर्सियां दीजिए, हमें कुर्सियां चाहिए, हमें अब मिट्टी में नहीं जाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड सर, प्रजापति साहब एक सेकंड, अरे वो शैलेश पांडे जी के पास क्या सर, शैलेश पांडे जी के पास क्या, वो सत्ता में तो है नहीं, वो मंत्री तो है नहीं अभी कि एकदम आपकी जो डिमांड है उसको पूरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, शैलेश पांडे जी मांग को हमारे नेताओं के पास रखूंगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी AICC रेजोल्यूशन में अभी ये मेजर 3 रेजोल्यूशन जो प्रजापति साहब बोल रहे हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन, SC ST इक्वल बजट,
नॉट ओनली पोजीशन देना पड़ेगा, बट आपको पैसे भी जितनी संख्या उतना हक उनको देना पड़ेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC ST OBC को वो परम स्थान देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का कंटिन्यूस न्याय पथ जो उन्होंने कहा, न्याय पथ एबॉलिश, 50% रिजर्वेशन को अबॉलिश कर दो, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस ने किया था। 51% OBC को दे दिया है। ये कदम ऑलरेडी कांग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं न्याय पथ करके। पांडे जी कब आप पेस में रहोगे, कब आप पहुंचेंगे वहां पर बराबर न्याय वाली बात? सर राहुल जी तो कास्ट बेस्ड वो करना चाहते हैं, तो वो ये लोग तो तैयार ही नहीं है सर, इसीलिए। पांडे जी आप तैयार नहीं है, पांडे जी आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये कुछ नहीं करेंगे सर, ये खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करेंगे। पांडे जी बोलिए, जवाब कुछ है आपके पास? कभी आप पेश रखो। राहुल गांधी जी, प्रश्न फिर से पूछिए जरा। राहुल गांधी जी AICC में जो प्रजापति साहब पूछ रहे हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन, चाहे SC ST हो, OBC हो, एक 50% से ऊपर जो रिजर्वेशन होना चाहिए, राहुल गांधी जी ठोस है कि होना चाहिए। SC ST को जितनी संख्या उतना हक, पैसे, बजटरी एलोकेशंस अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए। और फिर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप इनको एम्पावर करो, SC ST OBC और जितने पिछड़े समाज है। ये कब करोगे? ये राहुल गांधी जी का प्रश्न है। पांडे जी देखिए, राहुल गांधी का जो प्रश्न रहता है, यह हमेशा ये देश को गुमराह करने का काम अभी तक किए। पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बताया संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोगों को गुमराह कर करके ये सारी बातें की। लेकिन अब देश गुमराह नहीं होगा और हमारी नियति और नीति दोनों स्पष्ट है और दोनों साफ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए काम किया है और आगे भी काम करेंगे और पूरी दृढ़ता के साथ काम करेंगे। हम उनमें से नहीं है कि हम कर्नाटक में जाकर 5% आरक्षण धर्म के आधार पर देने का काम तथाकथित तुष्टिकरण वाले समाज के लिए करते हैं। हम उनमें से नहीं है। लेकिन सर ये तो बता दीजिए, आज इन्होंने क्या किया? SC ST OBC के हक का 5% जो छीन कर दे रहे हैं, ये SC ST सर ये बता दीजिए, ये छीन नहीं रहे हैं क्या? सर ये बता दीजिए शैलेश पांडे जी, ये क्या संविधान का सम्मान है? ये संविधान का अपमान सर है। प्रजापति कुमार समाज संविधान की का ये डिमांड है पांडे जी कि उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। वो कब होने वाला है जरा ये बता दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने ये डिमांड मान ली थी। अब ये कब होगा सर ये तो बता दीजिए। 6-7 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ है ये। दिस इज बेसिक, नंबर 1। नंबर 2, प्रजापति समाज को लेकर के लोगों में बहुत गुस्सा है। प्लीज पांडे जी जरा प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको मालूम नहीं, अगर आपको ये जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे प्रजापति संघर्ष समिति है, उनकी डिमांड है कि काफी लोग ऐसे हैं जहां पर प्रजापति समाज को लेकर के, जैसे रूपेश कुमार प्रजापति हैं, विजय प्रजापति हैं, इन सब लोगों का बहुत निर्मम तरीके से, बेरहम तरीके से इन लोगों की हत्याएं हुई हैं। उनके ऊपर एक CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कब होगी? ये सब चीजें हैं सर। नाउ पॉइंट इज दिस, यू हैव टू डू इट, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि आप बाकी सब लोगों के लिए कर रहे हैं ना, इनके लिए क्यों नहीं कर रहे? पांडे जी बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूं प्रजापति जी। जेंटलमैन, फारूकी साहब एंड व्यास साहब, आई विल बी कमिंग टू यू नाउ, बट फर्स्ट पांडे जी, you have to take this up. This is a long standing demand and it is for Prajapatis everywhere, all over. Sir, अगर हम लोग वर्ण व्यवस्था में भी देखें तो ब्रह्मा पुत्र कहलाए जाते हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ ब्रह्मा, प्रजापति। सर अब आप बोलें पांडे जी। जी राजीव जी, देखिए हमारी सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो प्रजापति समाज के लिए जो भी संवैधानिक तौर पे जरूरी चीजें हैं, संवैधानिक आधार पे, और उसके लिए वो सारे प्रोसेस चल रहा है। और प्रोसेस के बाद वो सही न्याय देने का काम हमारी समाज अवश्य करेगी, इतना मैं आपको पूरा आश्वासित करता हूं। और ये आप ये मैटर टेकअप करेंगे खुद अपने नेताओं से? 100% नेताओं के साथ जाकर के आप ये टेक ओवर करेंगे, आप ये डिमांड को लेंगे? जी बोलिए राजीव जी। एक बात और, मैं आप इसमें माध्यम बनिए, और जो मेरे मित्र प्रजापति जी हैं, वो उन्होंने जो करस्पॉन्डेंस किया है वो आपको दे दे, आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसके आधार पे। सर पूरा भरमार है सर, उसका भंडार है पूरा, भेज दूंगा सर। तो मेरे पास शैलेश जी, मेरे पास पूरा भंडार है, मैं आपको पूरा डाटा दूंगा। और मैं आपको और बता रहा हूँ आज, एक मिनट और रुक जाइए, बस 20 सेकंड। शैलेश जी, जी बोलिए। शैलेश जी,
बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में 7 से 8 जिलों में शिल्पकार के रूप में जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। आपसे बस एक ही मांग है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शिल्पकार के रूप में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिलवा दीजिए। क्योंकि जब आप, फिर वही बात है, जब आप 72 घंटे के अंदर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे सकते हैं तो इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को, प्रजापति समाज को, कुमार समाज को भी न्याय देने का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़े तब भी कर सकते हैं, क्योंकि आज आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार है। और देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा अगर इस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा में या मतलब लाने का कार्य किया तो माननीय नेताजी ने किया था। इस दबी हुई कुचली कौम को सबसे पहले अनुसूचित जाति में लाने का प्रयास माननीय नेताजी द्वारा किया गया था। आज आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप आज दोनों जगह शासन कर रहे हैं, आप इसको न्याय दिला दीजिए, मेरा बस आपसे निवेदन है। बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं राजीव जी के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा। आसिफ फारूकी जी, I'll come to you one question. आप कह रहे कि डेवलपमेंट की बात करें, आंकड़े हैं मोदी साहब के $820 बिलियन एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इन इंडियन हिस्ट्री। विकसित भारत के मोदी साहब एक रोड मैप जो बना के आगे बढ़ रहे हैं फारूकी साहब, और आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि $50 बिलियन, देवेंद्र फडणवीस जी $50 बिलियन यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो पर MMR रीजन में। तो ये डेवलपमेंट है, ये आप बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट दिखाओ, तो क्या ये मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड, आपको मायावती का रिपोर्ट कार्ड इज नॉट सेटिस्फाइंग फारूकी साहब? सर, ये सब नकली है, ये जुमलेबाजी है। आप आंकड़े दिखा के मेरा इम्तिहान लेंगे, फिर पूछेंगे आपको आइडिया नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, यहाँ का आंकड़ा वहाँ का आंकड़ा, ये सब इनके हाथ में है। आप हकीकत से बात कीजिए, इन्होंने कितनी नौकरियाँ दिलवाई, आज डॉलर का रेट क्या हो गया है, महंगाई अपने चरण पे है, गैस और पेट्रोल का क्या भाव है। सर उसकी बात कीजिए ना, ये क्या आप मुझको वो BA और MA की क्लास के जैसा क्लास लेने लगते हैं और मोदी जी ने बोल दिया, आंकड़ा लिख दिया कि इतने हमने लेके आए, और कौन लाया और कौन किया। जब इतने सब लेके आए थे तो महंगाई क्यों इतनी है, एक आम आदमी परेशान क्यों है, आप लोगों की जगह छीन क्यों रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान की को एक दूसरे से लड़ा के काम क्यों कर रहे हैं। आज वहाँ मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा वो निकला तो बोले वो बांग्लादेशी घुसा है। अरे आप इतने कमज़ोर हैं क्या बॉर्डर के ऊपर कि बांग्लादेशियों को इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ हो रही है, वहाँ हंगामा चल रहा है और अभी तक आपने अपनी बाउंड्रीज सही नहीं की हुई है और आप बोल रहे हैं बांग्लादेशी आ गए। सिर्फ आप परेशान करना चाहते हैं। ममता बनर्जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, इसलिए दूसरी गवर्नमेंट है। अरे आप कोई गलती है तो आप सेंटर में बैठे हुए हैं, आपके पास इतना बड़ा पावर है, आप उसको सील कीजिए। आप खाली बोल दीजिए, सेंसेशन पैदा कर दिया आपने, अरे दौड़ो 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 बांग्लादेशी आ गए, वहाँ पे तो देखो वो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, उसने वफ के लिए निकाल दिया। ये सब बंद करिए सर, और डेवलपमेंट के लिए काम करिए, इस कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। हिंदू जो है, एक अच्छा हिंदू कभी भी गलत नहीं हो सकता, या एक अच्छा मुसलमान या कोई भी रिलीजियस जो अपने दिल में रखता है। कोई रिलीजन मुझको नहीं लगता है गंदी चीज़ और गड़बड़ चीज़ सिखाता है कि इसको मारो इसको काटो। जो अगर वो मुसलमान भी काटता मारता है तो वो कातिल है, मर्डर है, उसके लिए हमारे संविधान में एक कायदा कानून है, उसको फांसी में लटकाइए अगर गलत है तो। लेकिन नहीं साहब, अब उसी में आप अटकाए हुए हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी महंगाई और कितना ये देश जा रहा है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, पढ़ के वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। वहाँ अगर वो एक अच्छा काम 100 रुपये वाला अगर वो उनकी ताकत है तो 25 रुपये पे फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए। ये तो हमारे नौजवानों की हालत है। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आंकड़े जमा कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, फडणवीस जी ने ये कर दिया, और आप एग्जाम दे रहे हैं कि राहुल जी जो है संसद में आके इस तरीके से बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन है राहुल जी को, नौजवान है, नौजवानों को लीड करते हैं सर, और उनको आके जब परेशानी लोग बोलते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है कि देश कहाँ जा रहा है, हम लोग और किस तरीके से ये गवर्नमेंट सोच रही है। मुझको कभी दो रोज पहले सर ये सारा फ्रस्ट्रेशन, ये सेंसेशन देख के एक साहब आए, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बोलिए कि क्योंकि ये हालात बहुत चेंज हो रहे हैं।
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम देशवासी पहले है सर, हमको इस देश को बचाना है। उस नौजवान की देखिए, वो समझ देखिए, वो सोच देखिए, क्या बोल के गया, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। यानी जो इतने हंगामे हो रहे हैं उसके बीच में इसने क्या बोला कि यानी ये जो कत्ल गिरी, खून गिरी, ये सब है, वहां से गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, टाल देने से कोई मसला हल होता है क्या, एक न एक दिन कोई फैसला करना होगा, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। सर ये नौजवानों का जहन हो रहा है, मुझको तो डर लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता एवरेज नौजवान इस तरीके से सोचने लगा तो इस देश के अंदर तबाही और बर्बादी के सिवा फिर कुछ नहीं। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू व्यास साहब। व्यास साहब, आप ये बताएं सर, इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल व्यू, इन टर्म्स ऑफ द वक्फ लॉ, protests among Muslims, and the manner in which Modi ji has handled the situation so far. Vyas sahab, please. बजाज जी, सबसे पहले तो जो चर्चा चल रही थी समाज के हर तबके को, हर वर्ग को समुचित उनका जो भी हक है, हक बनता है, अधिकार बिल्कुल, बनता है दुरुस्त वो बात। देने का, तो मुझे कम से कम इस मामले में सेटिस्फेक्शन होता है कि जिस दल से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे संस्थापक आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने ये नहीं देखा कौन किस धर्म से है या कौन किस वर्ग से है, जिसने भी जनता के बीच में रह कर के संघर्ष किया, काम किया, फिर वो चाहे साबिर शेख हो, फिर चाहे वो गणेश नायक हो, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे रिक्शा ड्राइवर हो, या तमाम वो कोई हमारे भुमरे जी जो वॉचमैन हो, तमाम ये कोई बीड़ी सिगरेट की दुकान चलाने वाले गुलाब राव पाटिल हो, उनकी जात नहीं देखी, उनका कर्तव्य कर्म देखा और उनका संघर्ष देखा, या और फूल वाले रामदास कदम हो, ला करके उनको मजबूत बनाने का काम किया। और यही होना चाहिए जब सार्वजनिक जीवन में आपको एक कार्यरत है, तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि आप हमको एमपी बना दीजिए, एमए बना, आप कहिए कि मैं इतना कर रहा हूं और अब मुझे मेरा अधिकार चाहिए जनप्रतिनिधि बनने का। और वही काम आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने हमारे संगठन में किया। इसीलिए तमाम समाज के तबके, चाहे वो फिर किसी वर्ग धर्म वर्ग के हो, शिवसेना के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब आपके वक्फ बोर्ड की बात पे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने पहले भी एक बार आपके इसमें डिबेट में मैंने आया तो मैंने कहा कि अगर 2013 का अमेंडमेंट नहीं आता तो 2025 का वक्फ बोर्ड की चर्चा भी नहीं आती। 1995 का जो कानून था, अगर वो चालू रहता फारूकी साहब, और 2013 में उसके साथ खिलवाड़ नहीं होता, तो शायद आज 2025 में ये तमाम 26 घंटे की चर्चा और ये अमेंडमेंट वगैरह नहीं क्या लाने पड़ते। अभी जो आया वो नया कानून नहीं आया है, अभी जो आया उसमें सुधार करने के लिए अमेंडमेंट्स आए हैं। मैंने उन धाराओं को पढ़ने का काम किया। जो तमाम ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ये इसमें, जैसे फारूकी साहब भी मजाक में कह रहे थे, हमारे अच्छे मित्र हैं, कि उसमें पांडे और वो तमाम शर्माजी वगैरह आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है फारूकी साहब। उसमें यह है कि अगर मान लो कलेक्टर है तो आप क्या चाहते हैं कि उस कलेक्टर को बदल के उसकी जगह पे कोई दूसरा लगा दे? कलेक्टर देखेगा तो कलेक्टर की जात थोड़ी देखी जाती है। कलेक्टर वहां का रेवेन्यू ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू ऑफिसर है, वो जांच पड़ताल आज भी करता है, आगे भी करेगा। वो हिंदुओं की जमीन की जांच पड़ताल कर रहा है और वक्फ बोर्ड की भी करेगा। ये है क्या कि उसको मतलब उसको कलेक्टर को विशेष पावर दिया जा रहा है। आज भी एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, वो तहकीकात कर सकता है, कल करेगा। उसमें वक्फ बोर्ड की जमीनों को जोड़ दिया गया है। जो विवाद आजाद ट्रिब्यूनल के पास है, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, उसकी उसी तरह से वो एक रेवेन्यू हेड होने के नाते करे। उसमें कहाँ कोई किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करने की बात है। हिंदू धर्म की जितनी जगह है वो देखिए फारूकी साहब, मैंने सेफगार्ड है सर। आप मैं 35 मिनट सुन रहा था, नॉर्मल जमीन से कनेक्ट मत कीजिए, मैंने आप मिसगाइड मत कीजिए। नहीं, यहाँ लोगों नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये नॉर्मल जमीन नहीं है कि कलेक्टर उसको फैसला करेगा। ये वक्फ की जमीन बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप वक्फ और नॉर्मल जमीन को समझ ही नहीं पाए, वो और इसमें हिंदुओं की सर वो ऐसा है फारूकी साहब, जांच करेगा, महफूज है सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? की जांच देख के अपॉइंटमेंट करें हम? व्यास जी छोटी सी बात, फारूकी साहब छोटी सी बात। व्यास जी, जो असली वक्फ की गई है लैंड, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर।
ये किसने कहा होगा? नहीं करेगा कोई। आप लेकिन अगर मंत्री का व्यास जी, लोकसभा और राज्यसभा आप ही की बात बोल रहा हूं ये सर, जो वक्फ यानी जो किसी ने भी अपने धर्म अपनी के जमीन काम वक्फ के लिए की है, दान जी हाँ। दी है, उस जमीन के ऊपर कोई कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन आप करेक्ट है। सरकार की जमीन को कह दो कि ये तो हमारी हो गई, वो तमिलनाडु के पूरे गांव को कह दो कि हमारा हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला। या उसको सूरत जरूरी है। की, या सूरत की अगर- म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग हमारी हो गई, वो नहीं वही होगा। मैं कह रहा हूं, जो सही मायने में किसी ने वक्फ किया है, किसी ने अपनी जी। प्रॉपर्टी को, अपनी मलकियत को अगर धर्म के काम में दिया, तो उसमें कोई फेरफार कोई करने वंडरफुल वाला नहीं। प्रजापति साहब, आपके जाने के पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। एक सेकंड सर, व्यास जी, वन सेकंड, प्रजापति साहब हैज टू गो। प्रजापति साहब जाने के पहले, आपके जाने के पहले, पांडे जी जरा बात ध्यान से सुन लीजिए। प्रजापति समाज अकेला समाज है, कुमार समाज, जिन्होंने आपकी बात करी है, आरएसएस की बात करी है सर, जिसके ऊपर मोहन भागवत जी इतने सालों से लड़ रहे हैं कि ये जो चाइनीज गुड्स आ रही है ना, प्लास्टिक की, ये वगैरह वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा एजिटेशन आज के कुम्हार समाज ने करी है कि सस्टेनेबल टॉयज बनाए जाएं, सस्टेनेबल चीजें बनाई जाएं। ये आप चाइनीज दिए और चाइनीज वॉटेवर जो बना बना के दे रहे हैं ना अभी सर, उनके खिलाफ कुछ करिए। सो आई थिंक शैलेश पांडे जी, जो अभी आपने यहां पे वादा किया है, प्लीज आप उसको निभाइए। थैंक यू प्रजापति साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यास जी, आपसे पूछना चाहता हूं, वी सॉ एकनाथ शिंदे जी ऑन द रोड टुडे। एकनाथ शिंदे जी खुद इंस्पेक्ट कर रहे थे कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स, जिस प्रकार से होना चाहिए था, काम जल्दी होना चाहिए, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ ही वाज देयर व्हेन ही वाज अ सीएम। वी सॉ फील्ड पे आकर वो पाइप लेके, यानी जनता के चीज को आगे बढ़ जाए। जो अंबेडकर जी के स्टैचू के लिए 2 करोड़ देना, तुरंत एकनाथ शिंदे जी ने क्लियर कर। बट बार बार आरोप जो आसिफ फारूकी साहब कह रहे हैं कि टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, चाहे वो 2 लोगों के जो नागपुर में बुलडोज करके घर तोड़ने वाली बात हो, या करप्शन वेयर इज कंसर्न्ड, वेयर आदित्य ठाकरे का चार्ज है कि कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स इज फुल ऑफ करप्शन, इज द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आप में आ गया महायुति का डिसाइसिव विक्ट्री के बाद। यू नॉट ओपन, योर योर्स आर नॉट ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। व्यास साहब, नामबिहार जी, विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष का काम है विरोध करना। हम उनको सुनते हैं और उससे ही प्रेरित होकर के जनता के बीच में जाकर के जन कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आज शिंदे जी, आप जैसे बता रहे हैं कि मुंबई की सड़कों पे थे, जहां जहां कंक्रीटीकरण का काम हो रहा है। अभी मैं आपके शो शुरू होने के पहले वही देख रहा था टीवी पे, 1333 करोड़ का कंक्रीटीकरण पूर्ण हो गया। करीब 2000 किलोमीटर का कंक्रीटीकरण करना था, 1333 किलोमीटर का कंक्रीटीकरण अभी पूरा हो गया। शाम को 6:45 का ये बयान मैंने अभी टीवी पे सुना। अब तो वो जनता के बीच में हमेशा रहे, जनता के बीच में रहते हैं। जैसे आपने कहा कि जब यहाँ पोल्यूशन का मुद्दा आया तो वो डीप क्लीन ड्राइव करके रोड पे आ गया, हाथ में पानी का पाइप लेकर के तमाम सरकारी ऑफिसरों के साथ, और आपने देखा कि उससे वो AQI लेवल जो है वो नीचे आया। तो वो जब भी जरूरत पड़ती है, वो जनता का सेवक है, जनता के सेवक के रूप में अपने साथियों के साथ जनता के बीच में रहते हैं। अब आरोप करने वाले करते रहते हैं और वो अपना काम करते हैं। उनका एक ही ध्येय है जो हमें आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है, 80% जन कार्य, सिर्फ 20% राजनीतिक का कार्य। 80% वो समाज सेवक है और एकनाथ शिंदे के साथ उनका एक एक शिवसैनिक समाज के प्रति तत्पर है काम करने के लिए, और समाज के साथ कभी हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। विकास की गंगा बहती रहेगी और हम आगे उसके बढ़ाते रहेंगे। यूसुफ शेख, फहीम खान का जो घर डिमोलिश किया बुलडोजर से, ये एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज था। दैट इज व्हाट द कांग्रेस से आसिफ फारूकी साहब, हाउ डू यू सी दैट? हाँ सर, ये तो बहुत आम बात हो गई है कि ये मुसलमानों के घर जो है, ज़रा सी FIR हुई और उसके अंदर नाम आ गया तो ये सीधा बुलडोज़र लेके पहुंच जाते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़क इनको एक्शन लेने के लिए कहा और इनके ऊपर नुक्ताचीनी की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कम नहीं हो रहा है, ख़ासतौर से यूपी और उसके अगल बगल के इलाकों में। तो मुझको लगता है कि ये संविधान में बिलीव ही नहीं करते जो बीजेपी वाले हैं, और इनका एक अपना डिक्टोरियल एटीट्यूड है जिससे वो हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, और हर चीज़ में ये हिंदू मुसलमान करके उसको डिवाइड करके अपना रूल करना चाहते हैं। मुझको लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों के लिए ख़राब बात होगी, और मैं इस माध्यम से इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा और हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि देश की जो हालत हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है,
जिस तरीके से भीड़ के और दूसरे इलाकों में मर्डर्स हुए हैं और वुमेन्स पे जितना अत्याचार हो रहा है, जी रेप हो रहे हैं बच्चियों के ऊपर और वो सेफ नहीं है। आपने दिल्ली में देखा, आपने यूपी में देखा जी कि किस तरीके से लोगों ने गैंग रेप्स किए हैं। फिर लास्ट वीक में एक न्यूज़ देख रहा था। तो मुझको लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए और जात पात से निकल के आगे के। लेकिन सर आपको लगता नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चाहूंगा कि व्यास जी भी इस पर रिएक्ट करें, दिस रियली इज माय फाइनल क्वेश्चन, कि टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया है सर, मतलब इसको जरा मुझे लगता है कम करना चाहिए। एंड आई एग्री विद राहुल गांधी जी जो अभी कर रहे हैं ना, वेरी फ्रैंकली आई एग्री विद हिम। वो सफेद शर्ट की जो कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, इफ यू नोटिस वो उकसा नहीं रहे लोगों को, आपने देखा बड़ी कूली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी तरीके से सब लोगों को बात करनी चाहिए, जरा ठंडे, जरा आई थिंक टेम्परेचर्स नीड टू बी कूल डाउन अ बिट। व्हाट डू यू थिंक फारूकी साहब? करेक्ट सर, मतलब आप राहुल जी का पूरा वो देखें जी बिल्कुल, तो कोई वो गलत बात नहीं करते हैं। अभी वो which is अगर not वो good. बोलते हैं कि डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं सर। किसी के भी घर पे उसके बाप दादा ने घर बनाया है, लेकिन वहाँ पे कोई FIR हो गया तो वो पूरा घर गिरा देते हैं, तोड़ लेट मी देते गो हैं। अक्रॉस टू व्यास साहब। व्यास साहब आपको क्या लग रहा है सर? व्यास एक साहब अपने जरा माहौल पैदा टेम्परेचर कर थोड़ा कम करना फारूकी चाहिए। साहब, मैं थोड़ा सा आपकी बात को करेक्ट करना चाहता हूँ बोलिए कि सर, ये प्लीज। ये धर्म देख के एक्शन नहीं होती, ये गैरकानूनी नहीं, काम जब होता है। आप बुलडोजर नहीं, चलाएंगे देखिए सर। देखिए, अब सुन आप लीजिए, कानून नहीं आपने फॉलो जब करेंगे। कहा, चलिए, यही दिक्कत मैं है बोलता हूँ फारूकी हिंदू साहब का घर आपके साथ। गिराया आपने। मैं ये मैं बताया, अच्छा बोलता हूँ कि बताऊं, आप कानून फॉलो नहीं आपने करेंगे। अभी सुन लीजिए, चलिए, शांति क्यों से गिराएंगे सर आप? सुनिए ना, क्यों सुनिए गिराएंगे? अभी भाई, मेरे भाई, क्यों सुनने की गिराएंगे तो सर? आदत आप डालो। कानून फॉलो कीजिए। कोर्ट ने आपको हाँ कहा है हाँ कि उसका हाँ, घर गिरवा अब दो। भीड़ में जो एक क्या नाम नहीं था, नहीं, वो कोर्ट 10 ने साल का कहा है कि कारीगर था, आपको उसका घर उसका घर गिराने के गिरा, लिए वो आप मुसलमान था हिंदू क्या? मुसलमान हिंदू मैं मुसलमान खोक्या खोक्या भोसले। वन विभाग ने जाके उसका घर तोड़ा, वो मुसलमान नहीं, था क्या? आप क्यों गिरवा रहे हैं सर? आप ये सुनिए, समाज में सड़क पे निकलते कि ये आप बंद अशांति करो। फैलाने आप भी वाला बोलिए। बयान क्यों देते आप हो कि मेरे खाली साथ ये मुसलमानों के बोलिए कि गलत हो रहा है। सर एक सेकंड सर, फारूकी साहब आप ही की बात कर रहे हैं। बोल का दीजिए काम आप। करेगा, फारूकी साहब एक जो सेकंड। कानून बोल तोड़ने का दीजिए कि काम गलत हो रहा करेगा। है। वो आपने भीड़ का चलिए। नाम लिया, भीड़ के उसका एक लड़का जो खोक्या आप खोक्या बोल भोसले, दीजिए गलत हो रहा है। खोक्या भोसले। वन विभाग ने तोड़ा, मुसलमान था बुलडोजर क्या? जो चल रहा है गलत हो रहा है, बोलिए। ये किस कोर्ट गलत ने चीज बोला है, है आपको ऐसा बुलडोजर नहीं है। चलाने के लिए? ये जो भी है कानूनी तौर पे काम होगा ना। और क्योंकि यूपी नहीं में भी हो रहा है, दुबे, देश की आप बोलिए न्यायालय गलत है, हो रहा है, और हमको जो बुलडोजर। न्याय अरे मिला सर है, यूपी ये में हमारे भी जो साथ दुबे गैंगस्टर था उसके भी तो 3 मकान तोड़े थे, जिसका इनकाउंटर हुआ था। धर्म नहीं देखा मध्य जाता। प्रदेश से जिसको ला रहे वो जो थे। गैरकानूनी लेकिन वेरी काम फ्रैंकली देखा सर, यू आर एन जाता है। एडवोकेट। धर्म इक्का नहीं देखा दुक्का जाता। आप बात छोड़ अरे दीजिए। सर व्यास आप साहब, फॉलो कीजिए। अरे फारूकी आप साहब एक कानून फॉलो सेकंड, कीजिए। आप किसी का अरे घर फारूकी है, साहब एक लोग मिनट बोलते रुकिए तो हैं गलत सही। तरीके से बनाया, गिराना है, गिराइए। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा फारूकी साहब एक सेकंड, लीगल और इलीगल एक जी। घर बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। वन सेकंड सर, वन सेकंड, लेट मी गो अक्रॉस टू व्यास साहब। व्यास साहब, यू आर आल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, डोंट यू थिंक द लॉ शुड बी फॉलोड इररिस्पेक्टिव ऑफ हुज हाउस इट इज? मैं कहता हूं सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन सर उसका घर जो है अगर उसको ढहना है, डेमोलिशन करना है, देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। यू एंड प्रदीप जी बोथ आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट सर, यू कांट अलाउ दिस इंस्टेंट जस्टिस। व्यास साहब बताइए। मैं बजाज जी, मैंने वही कहा कि ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, उनका जो लेटेस्ट जजमेंट हमारे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आफ्टर फॉलोइंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओनली यू कैन डिमोलिश समथिंग इवन इफ इट इज इलीगल। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट में अब उससे ज्यादा कुछ कहना, एज आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ, तो मैं उससे ज्यादा अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी गलत है कि तोड़े गए घर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो सभी वर्ग उसमें आते हैं। जो घर मुसलमान तोड़े के गए ज्यादा उसमें हैं। से हिंदू भी है। ये मत तो भ्रम गलत हो फैलाइए रहा है कि ना खाली सर, ये मुसलमानों के बोलिए तोड़े कि गए। गलत हो रहा है। गलत हो रहा है आप सर, बोलिए गलत हो रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत हो रहा है। मैंने कहा सुप्रीम नहीं, कोर्ट इनको के बोलने जजमेंट से दीजिए मैं ना सर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट मानता बोले कहाँ हूँ। मानते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट कहता है ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही डिमोलिशन करिए, मैं उसको सर माथे पे मानता हूँ। मैं मानना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी रोजी रोटी वही है। जी अच्छा फारूकी साहब और व्यास साहब, इसमें एक चीज आती है, यूपी के अंदर क्या हुआ है, या तो मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं या ब्राह्मणों के घर तोड़े गए हैं। ब्राह्मण माफिया के जो लोग हुआ करते ना, दुबे उबे वगैरह। सर ठाकुर किसी का घर नहीं तोड़ा गया, पूछ रहा हूं आपसे, मतलब मैंने बहुत ढूंढा है, नहीं कोई ठाकुर का घर नहीं तोड़ा गया सर अभी तक। वो ठाकुर तो गैंगस्टर होते ही नहीं है वैसे। दैट्स इट। इस पे कुछ कहना चाहेंगे व्यास जी? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं उस महान व्यक्तित्व के दल में हूं जिसने कभी जातिवाद को माना जी नहीं। बिल्कुल, आप भी आई एग्री मानते विद हैं। यू।
I know that, sir. एक शिवसैनिक होने के नाते मैं जातिवाद पे उसका तोड़ा एक गलत का व्यक्ति का घर या कोई भी है वो तोड़ा गया है, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जो भी होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे जी, एवरीथिंग ओके इन द महायुति? व्यास जी, ऐसा Definitely. तरह तरह की बातें। Definitely. एकनाथ शिंदे जी अमित शाह को कंप्लेन किया कि अजित पवार जी फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मिनिस्टर्स को नहीं दे रहे। प्रताप कोई सुनने सरनाइक गया ने है क्या? Is there any third person what Shinde discussed with the Amit Shah? Is there any evidence? Or it is only hearsay evidence? प्रताप सरनाइक सूत्रों ने के हवाले से तो हम जवाब देते ही नहीं साहब, सूत्रों के हवाले से मत बताइए। If there is a strong evidence, if you have, I am ready to answer. बट प्रताप सरनाइक ने कंप्लेन किया था कि हमारे एससी एसटी जो सॉरी एसटी बसेस का कुछ कीजिए, फंडिंग वहां पर नहीं आ रहा है। ना भाई नाम्बियार जी, तुरंत 24 घंटे में उनकी पगार 56% मिली, उनकी मिली कि नहीं? और ये तय हो गया कि एवरी 7th day of the calendar year they will get their salary. So what is wrong in that? बट रॉन्ग है, जिम्मेदारी निभाई ना। रॉन्ग है कि देवेंद्र फडणवीस जी पूरे सरकार को अपने गिरफ्त में रखना चाहता है। अभी वो परदेसी साहब को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट। नाम्बियार जी, कुछ चर्चाएं टीवी चैनल के बजाय मंत्रिमंडल की बैठकों में हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, ठीक। या हमारे स्टूडियो में हो जाए, हमारे ऑफिस में हो जाए, ज्यादा अच्छी बात है। कभी भी चाय पे आइए सर। इसीलिए मंत्रिमंडल की बैठकें होती है। जी, कभी भी चाय पे आइए सर, आइए। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। व्यास जी, थैंक यू वेरी मच। आसिफ फारूकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। But the fact is, Pradeep ji, the Prajapati Kumar Samaj, Yes, sir. they were promised that they would be in the scheduled caste list. और उसमें क्या है, आर्टिजन्स को लेकर के, शिल्पकारों को लेकर के, मोस्ट शिल्पकार्स आर इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने पिटिशन डाली है कि बाकी शिल्पकार अगर शेड्यूल कास्ट में हैं तो हम लोग क्यों नहीं? सो अब वो वन ऑफ द रीजंस कुड बी दैट दे आर ऑल सपोर्टर्स ऑफ द समाजवादी पार्टी। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, perhaps. I'm not sure. Here also the Daggar Samaj has been continuously. That's right. They have been there. They have been agitating. जब भी आपके प्रोग्राम में आते वो बोलते रहते कि हमारा क्या हो गया, something was promised to us that we'll be. अब वो क्या है कि you see what happens is कि whenever you go into a subcategory of an OBC or a backward class or a scheduled caste, you go into a subcategory, the numbers are not too big, and perhaps the community is not politically so influential and strong that they can actually influence the government into making these kind of decisions. अब शेड्यूल कास्ट का जो दलित समाज का जो रिजर्वेशन है उसको तो कोई हाथ लगा नहीं सकता, सीधी सी बात है। उसके अंदर अगर आप एक और कैटेगरी डालेंगे तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा सर। वेरी फ्रैंकली आई थिंक दैट इज व्हाट मिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड द सेंटर वुड बी फेयरिंग कि कुम्हार समाज को यानी प्रजापति कुमार समाज को अगर आपने शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डाल दिया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आई थिंक देव डिसाइडेड टू लेट थिंग्स बी फॉर द मोमेंट टू सी हाउ इट गोज। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही, और प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करें। The fastest growing channel in the Fastest growing channel in the nation. Please do subscribe to the channel and do send me your comments. As far as Pradeep ji and I are concerned, we'll of course be back tomorrow. और आप देखते रहें नेशन नाउ। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।